Strikers. Interglobe Marine owner Aman Maulvi versus Strikers Mr. Irfan Sheikh. So far, I guess Valsar Strikers played 2, lost 2. Interglobe Marine played 3, won 2, lost 1. In fact, both the teams have played 2, lost 2. So now is an opportunity here for both the teams to win a match, get points under the belt, and raise a hope that yes, we can make it through to the quarterfinals if we can win the next match as well. आज करो ना आई जा So both the openers are there on the wicket. Interesting match since both have lost their first encounter and the second encounter as well, and now is a chance, as we know that 2 teams out of the 5 teams in each group are going to go through with points, and then there is an opportunity for the last 2 teams, that is the 7th and 8th team, to go through 2 points or rather net run rate. Starts off very well, big appeal from bowler and behind the wickets. Umpire is unmoved, unfazed, not interested. And you can see the yellow coming closer to them all over. But lovely delivery, very good delivery to get first up. And the excitement coming to an end. And the bowler goes to his bowling mark. थोड़ा डेविएशन जरूर था वहां पर, गेंद थोड़ी अंदर की तरफ आई थी, उस वजह से ये जोरदार अपील हुई थी। अंपायर ने अपील को नकारा और बहुत ही सनसनीखेज शुरुआत हुई है इस मैच की। इंटरग्लोब मरीन टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए। Once again very nicely bowled, a talented player. Well, I guess not only in 10th PL, but Omkar Desai is a big name in tennis cricket, and he's here to showcase his talent in 10th PL. Right now, they are not in a good position as far as table chart is concerned with the caliber of Omkar Desai, Mangesh. I think they should have had one victory under their belt, but still not gelled well as a team. एक और बेहतरीन गेंद यहाँ पर जीत पटेल शुरुआत से ही अच्छे रिदम में नजर आते हुए एक एनर्जी लेकर आए हैं वो अपने टीम के लिए और बेहतरीन शुरुआत दिलाने की कोशिश करते हुए। पहली 3 गेंदें बहुत ही बेहतरीन रही है उनकी। इस बार देखिए आंखें हट गई थी, गेंद पर बिल्कुल भी निगाहें नहीं थी। जिस तरह से खेलने का प्रयास किया था उस गेंद को ओमकार देसाई ने। This time it was much fuller down the leg side, flicked away on the backward square leg region. Now we have seen many teams with a conservative approach. They are not going after the bowling right at the start. We have seen in the first 2 or 3 days that some people were going for switch hits right in the first ball. Now wickets are going to be the key, and they are playing that way. बहुत सी टीमों की ये रणनीति हमने देखी है। अब एक और सिंगल यहाँ पर देखिए, विकेट में भी थोड़ा बदलाव आज नजर आ रहा है। पहले 3 दिन में जिस तरह से ये विकेट खेला है उसे थोड़ा सा अलग आज खेल रहा है। विकेट थोड़ा सा स्लो हो गया है और उसको समझते हुए बैटिंग करना बहुत ज़रूरी रहेगा आज के दिन के खेल में और कल भी।
So this time very nicely played, wonderfully found a gap between both these fielders, and this is a thick outfield, quick outfield, no one can stop that. Very nicely played, late cut between the gully and the short third man region fielder, getting a boundary. मैच का पहला चौका ओमकार देसाई के बल्ले से, गेंद की लाइन और लेंथ को पहले डटोला, उसके बाद उन्होंने बैट का फेस खोला। जबरदस्त स्ट्रोक। लेट खेलने वाले बल्लेबाज कामयाब साबित हो सकते हैं इस तरह के विकेट पर। जब विकेट थोड़ा स्लो हो जाता है तो आपको ये करते आना चाहिए। ऐसे विकेट्स पर हम अक्सर देखते हैं कि जो स्ट्रेट और लेट खेलने वाले बल्लेबाज होते हैं वो कामयाब होते हैं। फील्डर की कोशिश अच्छी थी लेकिन गेंद तेज गति से निकल गई बाउंड्री के बाहर। And one of the best exponent of that in the third man region playing those late cut, square cut is none other than Gundappa Vishwanath. I always remember and hear in the commentary box whenever Sunil Gavaskar is there and there is a late cut being played or a square cut being played, he always takes name of Gundappa Vishwanath, one of the finest players that India has produced. यहाँ अक्सर उनकी चर्चा होती है। हालांकि सर डॉन ब्रैडमन भी इस स्ट्रोक को बहुत खूबसूरती के साथ खेला करते थे, एक और महान खिलाड़ी। लेकिन गुंडप्पा विश्वनाथ की ज़्यादा चर्चा होती है, खासतौर पर जब स्क्वायर कट्स खेले जाते हैं। हमने वीरेंद्र सहवाग को भी देखा है, वो भी कमाल के शॉट्स लगाते थे स्क्वायर ऑफ द विकेट या फिर बिहाइंड स्क्वायर ऑफ साइड में। 7 without loss in 1 and new bowler Harsh Desai. So Harsh Desai will be bowling to Mangesh. A decent start, steady start you can say given to Interglobe Marine by both these openers. Gone for the cross-batted shot. There are two men in the deep and they just take a single. This should have been 2 runs. Whenever you saw the fielders in the deep areas, especially when there are big boundaries, most of the times the first run if completed fast, second run is easily completed. But this is the example that we have seen so far in this tournament from many other players. काफ़ी सारे डबल्स देखे, एक ओवर में 3-3, 4-4 डबल्स भी हमने देखे हैं इस टूर्नामेंट में। Helicopter shot! Look at that! The ball is flying and talking in the air, and a magnificent hitter giving 6 runs to Interglobe Marine. दिस इज ओमकार देसाई स्पेशल फॉर यू। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने में माहिर है ओमकार देसाई और उसका ये उत्तम उदाहरण। बहुत कम बल्लेबाज हमने देखे इस टूर्नामेंट में जिन्होंने हेलीकॉप्टर पर छक्के जड़े हैं। And I don't understand now playing that shot down the fine leg region. When you can play so well down the ground, you have that much of power, and it's not easy. I've seen even in international format, many people try this helicopter shot, and you can consider even it is much easier in leather ball cricket to play this helicopter shot, but difficult in tennis ball cricket because leather ball flies much longer distances than this tennis ball. Once again, this time he doesn't time. Fielder underneath. And drops. He drops Omkar Desai. They have to pay a heavy price now. Hefty penalty will be given here by Omkar Desai. इस तरह के कैचेस आप इतने बड़े प्रतियोगिता में और इतने बड़े खिलाड़ी के कैसे ड्रॉप कर सकते हो, ये ज़रूर समझ से परे है। बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए थे फील्डर, काफ़ी समय था उनके पास, गेंद के नीचे पहुंचे भी थे लेकिन सेफ पेयर ऑफ हैंड्स देखने को नहीं मिले और ये कैच ड्रॉप हुआ है। Chalan will definitely be cut here. Even if you do a mistake and don't follow the road safety or road laws, you might get a chalan back home. और अब लीजिए, उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। शानदार शॉट, इनसाइड आउट खेला, कवर्स के ऊपर से 4 रन। Well, this shot is a GST on the fine that was dropped. बेहतरीन स्ट्रोक, मयूर से वो गलती हुई थी।
कैच उनके हाथों से छूटा था। इस बार थोड़ी जगह मिली थी हाथ खोलने के लिए और मार्जिन फॉर एरर बहुत कम रहता है, ना के बराबर मैं समझता हूँ। टेनिस बॉल क्रिकेट में गलती की गुंजाइश नहीं होती है लाइन और लेंथ को लेकर। बल्लेबाज ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलने का प्रयास करते हैं। This is India. This should be an easy catch. No, the luck is favoring Omkar Desai. Once again, he was going for that big heave over a mid-wicket region. The ball lands and falls in no man's land. And a single to finish over number 2. A chance given to Omkar Desai in that over. And he scores a boundary as well. After that, after 2, it's 21 without loss. दोनों टीमों के प्लेइंग 11 अनिकेत रावत इंटरग्लोब मरीन टीम हम देखें तो एक अच्छे खिलाड़ी है, ऑलराउंडर है। करण मोरे, प्रज्योत अम्बीर है, तेज गेंदबाज है, श्रेयस कदम है उनके पास। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है आप दोनों टीमों पर यदि नज़र डालोगे तो। और एक इम्पॉर्टेंट मैच भी है दोनों टीमों के दृष्टिकोण से। अभी तक उतना अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं है दोनों टीमों का। इंटरग्लोब मरीन बनाम वलसाड स्ट्राइकर्स, चौथे दिन का ये तीसरा मैच आप देख रहे हैं इस समय। SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10PL सीजन 4 और अच्छी शुरुआत इंटरग्लोब मरीन के लिए, 21 बिना किसी नुकसान के। पावर प्ले का जो खेल देखा हमने पूरे प्रतियोगिता में, एक औसतन स्कोर आप देखोगे ना तो वो 20-22 के आसपास ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। Yes, sir. Maybe I think somewhere around 25, 26, 27. But some teams have scored 30, 35. So if you count average, I guess between 23 to 26 will be the score. Considering the other tennis ball tournaments that are played across, here the standard of bowling is also quite good, and also the ground is big. So it's not easy. You have to change your game. You have to understand what is happening. This is a wonderful surface. We are into the 4th day. So you got to analyze, and the perspective of understanding and reading the game is also a very crucial part for any cricketer. It's just that you are playing your game in other tournament does not mean you are going to play the same game here. So those batsmen or those bowlers who have understood, change their game, be smarter, are doing well in this tournament. परिस्थितियों को बहुत जल्दी भाप लेना और उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है। बॉलिंग में परिवर्तन, अतीक सैयद बायत के गेंदबाज को अब आक्रमण पर लाया जा रहा है। विकेट की ज़रूरत है, पिछले ओवर में विकेट मिलते मिलते रह गया। मौका क्रिएट किया था गेंदबाज हर्ष देसाई ने, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ डीप में। Oh, direct hit, and it will be certainly going to the third umpire. Direct hits are always close, and this might be one more instance. A very good pickup here from the fielder, and throwing and aiming the stumps and hitting the stumps. Let's see. वाइड यॉर्कर गेंद थी, उसको चॉप किया था सीधे फील्डर की तरफ। शॉर्ट थर्ड मैन पर बाउंस पर यह थ्रो आया और बल्लेबाज ने जो तकनीक दिखाई है वो लाजवाब है। जो बेसिक्स होते हैं रन को कंप्लीट करने के, वो वहां पर नजर आए। बल्ला स्लाइड किया उन्होंने और सही समय रहते हुए ही अपने क्रीज में पहुंचने का प्रयास किया है। Yes, he was grounding the bat and also stretching fully, and that is the reason why he saved over there. So good piece of basic of cricket being done here by Omkar Desai and Mangesh. Not out will be the signal, and the bowler was ready on his bowling mark. This was a good ball, very good ball coming from around the wicket as a left-arm medium pace bowler and getting the ball to move away from the right-hander. Quick leg cutter. We have seen these left-arm pacers from all the teams, maybe 2, maybe 3, and all are different from each other. Have different actions, different trajectories, the variations, the off-cutter, the Chinaman, that one that comes in, not easy. जी हाँ, बहुत से बायत के गेंदबाजों को हमने देखा। हमने प्रदीप मलिंगा को भी देखा, जो कि आप कह सकते हो कि एक बायत के मलिंगा यहाँ पर खेले। उनका एक अलग स्टाइल था, साइड आर्म गेंदबाजी। कुछ गेंदबाजों को हम देख रहे हैं जिनका बिल्कुल हाई आर्म बॉलिंग एक्शन है, कुछ राउंड आर्म से गेंदबाजी करते हैं। तो अलग अलग शैली के गेंदबाज, बायत के ज़्यादा गेंदबाज हालांकि पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिले हैं। Yes, and Pradeep was an absolute mirror image of Lasit Malinga.
And all the bowlers, I think most of the bowlers, most of the left-arm medium pacers have done very good compared to the right-handed. That's the reason why the team management and the captain have more hopes on them, giving them the ball whenever it is required to take a wicket or a bowl a quick over, which fetches them few dot balls. This was once again a big hoik tried. No connection. Very good bowling from Atiq Sayyed. थोड़ा सा दबाव उन्होंने बनाया है. So we welcome Shri Hemanji from Pepsi Group, who are our beverages partner, having an intense discussion with Arif Bhai of 10PL. We are thankful to our beverages partner Pepsi. Har good mein swag. Pepsi is known to have a fantastic marketing campaigns throughout the world, and we welcome Hemanji and his team to 10PL. Thank you. Well, yes, it's an honor for 10PL as well to have Pepsi as one of the sponsors, a beverage partner, one of the biggest giants in the corporate world. And they will be also, here is Pepsi. Who doesn't like Pepsi? Idil mange mo. More fizz, more refreshing. Pepsi. NPL सीजन 4 के बेवरेज पार्टनर थैंक्स उनको हम जरूर कहना चाहेंगे. 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है 26 बिना किसी नुकसान के. इंटरग्लोब मरीन टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए. ऑफिशियल पार्टनर स्मार्ट चेन, Socos.io, DJ Beats. So after 3 good start here by the openers, and this is the same average score we are talking about, somewhere between 23 to 27. Right now it is 26. This is the scenario that we have seen throughout. Openers doesn't want to give wickets, also taking advantage, a little bit advantage of the batting power play. Once you are well set, where Omkar Desai is playing very well of 21 of just 11 balls, and he will look to strike the ball much quicker and finding the gaps as well. आपने एक बात नोटिस की होगी यहाँ पर हरीश कि आउटफील्ड भी थोड़ी सी धीमी हो गई है. ये ऐसे शॉट्स हमने देखे हैं जो बहुत तेज़ गति से बल्ले से निकले हैं, लेकिन बाउंड्रीज नहीं प्राप्त कर पाए हैं बल्लेबाज, जबकि गैप में भी शॉट्स खेले गए हैं. I don't think so. It's a problem of the outfield. I feel the ball is coming slower off the deck. That's the reason when we started, the ball was coming with more pace. So when you play your shots and time it well, the ball was going off that pace, using the pace and crossing the fences for 4 runs. But since the ball is coming a little bit slower, you have to force the issue as a batsman. You have to apply the force, you have to apply the pressure on the ball to go it for 4 runs, just like how Newton's third law of motion states. जी बिल्कुल, ये भी एक कारण आपने जो बताया वो भी सही है. चौथे ओवर का खेल चल रहा है. जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ती जा रही है, खिलाड़ियों की सोच भी थोड़ी बदलती जा रही है. ओपनर्स का रोल भी थोड़ा सा बदलता हुआ आपने देखा है. इस बार हवाई फायर किया है, यहाँ पर मौका बना है डीप मिड विकेट की दिशा में, और अब की बार कोई गलती नहीं. पहले विकेट का पतन होता हुआ बैट्समैन आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए मंगेश वैती. रन रेट थोड़ा सा धीमा हो गया था पिछले ओवर से, और उसी का ये नतीजा आप कह सकते हो कि थोड़ा सा दबाव बनता जा रहा था बल्लेबाजों पर. धीमी गति की गेंद थी, उसको आसमान में खेला, केवल ऊंचाई थी स्ट्रोक में, दूरी तय कर नहीं पाई है गेंद, और अच्छा कैच डीप मिड विकेट पर. As this time safe hands are here from the fielder. Catch taken, first wicket down, and opening stand has been broken. You can see that trying to play that shot, but did not get the power.
the bat and the impact of the bat with the ball was not the connection that batsman always likes. So finally, the bowling side has broken through. And we have seen in this tournament when someone breaks through with a wicket, suddenly you can see 2 or 3 or 4 wickets going down in succession. 29 पर 1 श्रेयस कदम आए हैं ऑफ द हिप्स, गेंद को टर्न कर दिया है हिप्स पर लेग की तरफ और सिंगल से खाता खोलते हुए श्रेयस कदम। और इनके कदम निश्चित रूप से आप एक बड़े स्कोर की तरफ जा सकते हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म अच्छा मिला है इंटरग्लोब मरीन को। So that's a beautiful logo of Pepsi ruling the world. Aquafina water bottles. Now see, that's how you win the hearts of people. That's the drinks trolley or the bag that they carry on the ground. स्विंग एंड मिस। ओमकार देसाई अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास कर रहे थे। अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी, पिछला ओवर भी बहुत अच्छा था अतीक का, उन्होंने दबाव बनाया, उसका फायदा उठाया जीत पटेल ने। उनका ये दूसरा ओवर है, काफी अच्छी गेंदबाजी की है दोनों ओवर्स में जीत पटेल ने। Big appeal there, an umpire calls it a wide. And reaction from the players is maybe it has hit maybe the sleeves. बहुत जोरदार अपील थी ये, विश्वसनीय अपील थी गेंदबाज और विकेट कीपर द्वारा। सफल कर चुके थे वहां पर ओमकार देसाई। और अब अंपायर एक बार फिर से अपनी जगह पर जाते हुए। I think a review has been taken. It has gone to the third umpire. Main umpire is telling maybe it has hit the sleeves. Umpire wants to be absolutely sure here. निर्णय आएगा तीसरे अंपायर का। But I think also time allotted given this time will definitely be taken out. But 45 minutes have been given to complete your one innings for every team. And yesterday I think everyone abided by that, and that's the reason why we could end it on time. So all have to follow and abide by the time given by the organizers. Not out signal here by the third umpire. So wide has been that was signal. Maybe the third umpire referral was maybe it was off the edge. That was the appeal from the fielders, but it was definitely not. Now I think Jeet Patel should not lose his focus here. He has bowled well. Sometimes this is a part of the game, and you have to continue and channelize your energy and focus your energy in the right areas. Bowl the last ball of your spell in the right way. This is in the air. This might be 6 runs. This has costed 6 runs. It has worked in the minds of bowler Jeet Patel, and Omkar Desai strikes a magnificent flick that went for a long 6. That's Pepsi, a beverage partner, a wide range of products, and Pepsi, more fizz, more refreshing, and we take a strategic timeout sponsored by Akar Chain. Pepsi is being served to the players along with Aquafina water, and beautiful branding, and the stadium has come alive. If you are feeling thirsty, drink Aquafina water. Drink Pepsi.
And I remember an age-old advertisement of Aishwarya Rai. Got another Pepsi. I think that ad was one of the best ones. Pepsi's ad campaigns. Now there you see the players sipping Aquafina water bottles and of course Pepsi. A drink with the fizz that refreshes you, rejuvenates you, and gives you that energy to go ahead and play. So extremely thankful to Pepsi because they are a beverages partner, PepsiCo India Holdings Private Limited, and we are indeed privileged to get associated with a brand like Pepsi. It's an MNC, it's an international brand ruling the world, and I request everyone to go ahead and enjoy the drink. Players are enjoying the drinks break. This is Akar Chain strategic timeout of 2 minutes and 30 seconds, just like IPL. And the players, they quench their thirst and then they get ready. So beautiful branding on the... Congratulations, Pepsi. I love you. मौसम मस्ताना हर कोई है 10 PL का दीवाना। 10 PL में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। Welcome Hemant Pandya Sahib on behalf of Pepsi, who is with us. He's our distinguished guest and he's enjoying the ambience and the atmosphere. With him, chairman of our league, Arif Khan. And I'm sure this partnership, this friendship, this association blossoms, and we will see Pepsi as a beverages partner in all the forthcoming editions of 10 PL. Thank you. Let's go back to Combox. बिल्कुल 10 PL में आप सभी का स्वागत है। खेल की शुरुआत होती भी पहली गेंद आहिस्ता से गेंद को निकाल दिया है, लगभग डिपिच गली में 1 रन। 10 PL present by Exchange.net and powered by Petroman, the average partner Pepsi, DG Bits, Akar Chain. Thanks to all our sponsor. गेंदबाजी इस वक्त करते हुए दूर वाले छोर से अतीक सैयद। ओह, अजीबो गरीब शॉट, रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, बहुत जल्दी पढ़ लिया था बैट्समैन के हलचल को। ब्लॉक में गेंद की 1 रन। Harish, what do you think about this thoughts of Akil Sayyed? Well, I think both are smart over there. Bowler reading the mind of the batsman. He was going for the switch hit at the last moment. Bowled it straight. If he had not put that bat, then he would have been back in the pavilion. सीरिया सामना कर रहे हैं, इस मर्तबा फिर स्विच हिट करने की कोशिश, फिर बीट किया ऑफ स्टंप के बाद। ये जो 2 बैट्समैन है हरीश, ये प्रमुख बैट्समैन है अगर हम बात करें इंटर ग्लोब मरीन की। बिल्कुल सीरियस कदम, हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए 10 PL में, और पहली मर्तबा ओमकार देसाई अपने क्लास के मुताबिक बल्लेबाजी कर रहे हैं। अतीक सैयद इस मर्तबा खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है, थोड़ा फंबल किया वहां पर, क्या छूटा सपना टूटा। हालांकि सीधी गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे ट्रैवल हो रही थी, जीवन दान मिला है वहां पर सीरियस कदम। Well, I think the fielder lost his foothold over there and lost his grip on the ground, and in the end you can say a good recovery. यस, दुनिया टेनिस क्रिकेट का शो आप देख रहे हैं, 10 PL वर्ल्ड कप। इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, टैप करना चाहते थे, अंदर की जानिब कटी। There you can see the logo of Pepsi on the sleeves of the jerseys. You can see that Pepsi logo. Yes. It's Yes. focused once again by the cameraman. Wonderful camera work as well. Yes, no doubt at all. Look at that. Pepsi. Atik Sayyed.
इस मर्तबा देखना है क्या कुछ हुआ है। बहुत ही बढ़िया एफर्ट रहा वहां पर। अब क्या रोक पाएंगे गेंद को? देखिए दोनों खिलाड़ियों का एफर्ट था, उसके बावजूद गेंद 4 रनों के लिए। I think a very good effort here and a fantastic job, but in the end the ball turns out to be the winner. Fine shot here in the fine leg region, but you can't take from any of you can see wonderful that was good die, but in the end the ball touching. Very good batting here from Omkar. ओमकार शोइंग इस क्लास। पहली मर्तबा हम 10PL में देखते हैं कि ओपन क्रिकेट का बड़ा नाम ओमकार देसाई बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुल मिलाकर अभी तक 17 गेंदों पर 33 रन। सिर्फ एक बैट्समैन है जिन्होंने अर्धशतक जमाया है अब तक 10PL में। Sir, talking about Pepsi, just like we have seen 10PL as the highest standard, Pepsi also keeps its standard the highest in the world as far as the beverages is concerned in India and across the globe. And not only the actors, but also many of the cricket superstars were the partners for Pepsi in the end. And if you remember, I think you are a little bit more experienced and more aged than me, and you will have seen more ads than me. So which of the Pepsi ads you feel is your favorite over the years? देखिए पेप्सी के जितने भी ऐड हैं हर ऐड सोने पे सुहागा है। पेप्सी नाम ही काफी है। कौन है दुनिया में जो नहीं जानता पेप्सी? And I think the first one that I started following when Sachin Tendulkar, Ayla. Yes. That was लेकिन देखिए जितने भी ऐड हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स रहे, चाहे वो शोबीज से आए हो, लेकिन पेप्सी के सभी ऐड एक से बढ़कर एक है। कंपैरिजन करना मुश्किल है क्योंकि नाम ही काफ़ी है। पेप्सी एक से बढ़कर ऐड है। खेल की शुरुआत होती भी इस मर्तबा बैकफुट पे गए, खींच के मारा है, फुल पावरफुल 6 रन, मस्तक पे दस्तक। हरीश आपको एक बात बताता हूँ, ये जो सीरियस कदम है ना, ये कभी भी एक नहीं मारते। ये जब शुरू हो जाते हैं तो शुरू ही हो जाते हैं। Yeah, when Shreyas becomes serious, then he is dangerous. These are serious signs here for the bowling team. If he gets going, I have seen him hitting big six, not small ones. And if he connects even not even of the meat of the bat, this ball is going to fly across the boundary row for maximums. सीरियस को फिर फोर्स किया, एलिवेशन ज्यादा नहीं है, गेंद लॉन्ग ऑन पे पहुंची है। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ रही है। इंटर ग्लोब मरीन बनाम वलसाड स्ट्राइकर मैच चलता हुआ, स्कोर है 51 रन 1 विकेट। ओवर नंबर 6 चल रहा है। गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त देवीयाश टांडेल। सामना करेंगे ओमकार देसाई, ओपन क्रिकेट का बड़ा नाम। बढ़िया गेंद आगे रखा था, कांटा बदला था, थोड़ी बाहर की जानिब निकली थी, पैर नहीं चले थे, क्रीज बॉक्स से खेले थे ओमकार। I think he shuffled across, but the ball bouncing little bit more. He maybe anticipated that it is going to come to his half. It was not. Once again, Pepsi. Beverage partner of 10PL, Pepsi. कट करने की कोशिश, बच गए वहां पर, किस्मत वाले रहे कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया। बहुत ही खूबसूरत गेंद, 2 अच्छी गेंदों के साथ वापसी करते हुए। ये देखिए उछाल भी था गेंद में और सही लेंथ और लाइन पे टिप्पा खाया था। And what I can call from my words, Divya bowling from Divesh. दिवेश तांडेल ने परेशान किया है ओमकार देसाई को। सीरियस कदम ने जाकर कुछ कानमंत्र दिए। The partnership of 22 runs from just 13 balls. And these are
both aggressive batsmen, hard hitter of tennis ball. He can strike big, and that is what is the expectation of the dugout, I feel, at the moment. इस This मरतबा time- बैकफुट पे चले गए, पुल किया है, पीछे खिलाड़ी है, आउट हो गए ओमकार देसाई। Well, the big announcement today coming up from the organizers and Arif Bhai that the Indian players who are playing in season 4 here in Gujarat will be given the first preference to go in Dubai during the next season. और देखिए ना हरेश, कितनी बड़ी बात है। पेट्रोमन जो है और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है 10PL की, ये एडिशन जो भारत में हो रहा है 10PL का, इसमें जितने भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब यूएई का एडिशन होगा तो इन खिलाड़ियों को पहले मौका दिया जाएगा। ये प्लस पॉइंट है, ये सफलता है इन खिलाड़ियों की 10PL की। And the bowling side, some of the rules that has been kept here, and wonderful to see on the screens. This is the first time that the clock is ticking, and the captain of the fielding side has to see that clock and see to it that he finishes the overs in time. तांडेल मुड़ते हुए नए बैट्समैन बाएं हाथ के योगेश चौधरी आए हैं। देखिए डेथ ओवर के खेल में ये बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। इस मरतबा स्लाइस किया, गेंद सीधी गली में, एक और विकेट। Well, a wonderful catch here in the short tournament region. Mayur are taking a good catch. देखते हैं किस तरह से आउट हुए योगेश चौधरी। शून्य का चश्मा पहन के डगआउट लौटते हुए स्लाइस किया था, ज्यादा उछाल था। ये देखिए क्लोज ऑफ द बॉडी, डिपिश गली में, कोई गलती नहीं, बढ़िया कैच। Well, this is cricket. Mayur was the same fielder that had dropped catch of Omkar Desai, but this time cricket gives him the second opportunity and he grabs with both hands. Wonderful catch taken and departs is Yogesh Chaudhary. ओवर समाप्त होते हुए 6 इंटर ग्लोब मरीन ने बनाए कुल मिलाकर 51 रन। 33 रन बना के आउट हुए ओमकार देसाई। चौधरी अपना खाता नहीं खोल पाए। एक्सीलेंट ओवरटर्न फ्रॉम देवेश तांडेल। क्या बॉलिंग थी। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए मुसद्दिक शेख। कल के मैच में मुसद्दिक शेख ने आखिर की 2 गेंदों पर 2 चौके जड़े थे। सामना करेंगे श्रेयस कदम। बहुत कुछ डिपेंड है इस खिलाड़ी पे। ये तोड़ के बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं। हुक करने की कोशिश कान के पास से, बैट्समैन को गुड आफ्टरनून कहती हुई गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास। अच्छा उछाल था जीत पटेल की गेंदबाजी में। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स गेंद कर रहे हैं। जीत पटेल। Shakir Ajmer is the bowler. This time bowls a wide ball. The first one was a good one. The second one was a way outside off stump. यस, शाकिर अजमेर आए गेंदबाजी के लिए नॉर्थ एंड से। सामना करेंगे श्रेयस कदम। हेलीकॉप्टर उड़ाया, लैंड होता हुआ सीधा आउट ऑफ पार्क। 6 रन। व्हाट अ स्ट्रोक। Yes, this. क्या हेलीकॉप्टर शॉट है। थोड़ी देर के लिए तो मानो, यस, थोड़ी देर के लिए तो मानो ऐसा लगा हो कि
सीरियस कदम नहीं बल्कि MS धोनी यहाँ पर ये शॉट खेल रहे हो। And this तू heli- कहू, and this helicopter shot almost crashing the expectations of the bowler and the fielding side. शाकिर इस मरतबा हल्के हाथों से गेंद को पुश किया। अब जबरदस्त हवा का झोंका चलता हुआ Paging for Petrosov International and SI Goa Super Kings. Paging for SI Goa Super Kings and Petrosov International. Thank you. लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत में इस वक्त तेज हवाएं चल रही है और टेनिस क्रिकेट में हवा चलती हुई 10PL की हवा चलती हुई पेप्सी की हवा चलती हुई पेट्रोमन की हवा चलती हुई स्काई exchange.net की। इस मरतबा कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना खेलना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद चली गई, शॉर्ट टर्मिन पे हड़बड़ाहट में रन लेना चाहते थे। अब अटैक शुरू हो चुका है हरीश। Yeah, attack will be done. There was actually no chance of a single there. Left-hander maybe thinking that I have to give strike to Shreyas Kadam, one of the big hitters. We have seen the biggest six being hit today from Shreyas. This will certainly be rated as one of the longest six that we have seen so far in this tournament. I was mentioning this point that he is capable of hitting sixes on any ground for that matter. Yes, one of the dangerous player. बढ़िया वापसी अजमेर की गति परिवर्तन किया था, चकमा खा के मुसद्दिक शेख। फिर गति परिवर्तन, इस मरतबा गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, बहुत बढ़िया रनिंग कैच, आउट हो गए मुसद्दिक शेख। गुड कैच यार। कमाल का कैच। मौसम है सुहाना, सूरत में हर कोई ये 10PL का दीवाना, और ये दीवाना क्यों ना हो। 10PL वो फॉर्मेट है जिसे दुनिया का हर क्रिकेटर खेलना चाहता है और दुनिया का हर क्रिकेट प्रेमी देखना चाहता है। Well, this was not a very good batting here, I can say, from the youngster. Well, what he has to do is he should have given strike by taking a single to Shreyas Kadam. In fact, they have wasted 3 deliveries over here. 3 deliveries have been wasted and Shreyas Kadam has been kept at the non-striker's end. Not smart piece of batting. Paging for SI Goa Super Kings and Petrosov International. Captains to be ready for the toss ceremony. Thank you. हैट्रिक पर हैं जीवेश टांडेल। इस तरह का हैट्रिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कपिल देव के भी नाम है और वकार यूनुस के भी नाम है। 2 ओवर में हैट्रिक करना। हैट्रिक गेंद कदम को उछाल दिया है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर 6 रन। What a stunning shot! What a stunning shot this is! How can you be so cruel against the bowler? Look at that power, look at that timing. My God! पावर बैक स्ट्रोक। क्या शॉट खेला है। 9 बैट्समैन तो इस शॉट में आउट हो जाते, एक लगाते हैं, उसका नाम है सीरियस कदम। मैन ऑन फायर, एज एंड गॉन। यस, ही इज आउट। क्या वापसी की है तांडेल ने। ये रहता हरीश, ये शेरों की लड़ाई है, क्योंकि तमाम टीमें कंप्लीट है और 10PL में वार पलटवार चलता रहेगा, क्योंकि ये घोड़ों की नहीं शेरों की लड़ाई है। शेर दिल क्रिकेटर्स हैं और लगाम घोड़ों को डाली जाती है। क्या समा है, क्या जूम पकड़ चुका है। लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत से आप देख रहे हैं, मौसम है मस्ताना, हर कोई है 10PL का दीवाना। ये दीवानगी चलती रहेंगी कल देर रात तक। Yes, absolutely, and very good comeback here from Divesh Thandel. And he has taken 2 important wickets. Both the hard-hitting batsmen Omkar Desai and Shreyas Kadam, both have been taken out of the contest by him. So in spite of hitting a 6, cricket gives you a chance. Cricket gives you a second opportunity to shine brightly, and he has done it very well over here.
Divesh Tandel showing his talent and class. So Mr. Hemant Pandya, Regional Head, Pepsi, enjoying the atmosphere here, and we welcome Hemant Bhai and all his team members here at Surat District Cricket Association's Lalbhai Contractor Stadium on behalf of 10PL. Thank you. तांडेल मुड़ते हुए बैकफुट पे गए, खींच के मारा, एक और सिक्सर, एक हमारी एक तुम्हारी चलता हुआ। नए बैट्समैन अनिकेत राउत का ये शॉट था, देखिए बिल्कुल जिद्दी क्रिकेट, पहली पे सिक्सर, दूसरी पे विकेट, तीसरी पे सिक्सर। I still remember that childhood game we used to play, Talyat Malayat. It's like a 6 and a wicket, 6 and a wicket. That's happening right now at the middle, but score is definitely moving, and it has gone to 71, which is a pretty good total. 70 plus is a good total. They have got 3 balls still left, and Aniket Raut is coming into the touch where as an all-rounder. इवन फुल ओवर चलता हुआ आखिरी, तांडेल मुड़ते हुए फिर से खींच के मारा है, गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है, बढ़िया फील्डिंग डीप में, 1 रन। देखिए पेट्रोमन हो, हमारे तमाम पार्टनर्स हो, चाहे पेप्सी हो, चाहे स्काई एक्शन .net हो, आकार चेन हो, आरिफ भाई, वाकई में ये बहुत बड़ा इवेंट है। हम कुछ लोग क्या रहे थे, ये देखिए पेप्सी बहुत खूबसूरत, पेप्सी मॉर्फीज, बिल्कुल आरिफ भाई उनके तमाम साथी ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जो वाकई में सुनहरे उर्फों से लिखने के बराबर है। हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संग मील, हम वो नहीं है जिनको ज़माना बना गया। ये संग मील खुद तराशे हैं पेट्रोमन ने। तांडेल मुड़ते हुए फिर मिस टाइम स्ट्रोक है, पीछे डीप फाइन लेग पे खिलाड़ी है, 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। इंटर ग्लोब मरीन का 73, बल्लेबाजी में छाए रहे थे ओमकार देसाई, 33 रन बनाए। अगर हम बात करें सीरियस कदम की, उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की, कुल मिलाकर 22 बनाए। Well, this is going to be the last ball, 73 for 5. I think bowlers also have done a good job. They have not allowed to drift it away more than 80. Karan More normally used to come open for this Interglobe Marine team. Now facing the last ball. Aniket Raut. इस मर्तबा ऑन साइड में खेला है, छूट गई थी, दूसरे की कॉल। ये देखिए बचपन में कंचे नहीं खेले थे, यहाँ 2 रन थे, वहाँ 3 रन बनाए। लाठी चार्ज क्रिकेट चल रहा है, चौथे के लिए भाग चुके हैं और अब चौथे पे रन आउट। तो कुल मिलाकर 3 रन स्कोर में आते हुए इंटर ग्लोब मरीन ने कुल रन बनाए 77 रनों की चुनौती रखी है वलसाड टाइगर्स स्ट्राइकर के सामने। चलते हैं टॉस बॉक्स में, जहां पर वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या मौजूद है। Thank you, commentary box, dear friends. Good afternoon to you. You are watching SkyExchange.net. Presents 10PL Season 4, powered by Petroman, beverages partner Pepsi. We are thankful to our strategic timeout and official partner Akar Chain, official partner Socos.io, Digibits and Smart Chain, kidding partner UIP and venue partner Surat District Cricket Association's Lalbhai Contractor Stadium. We are getting ready for the toss ceremony between Petroserve International and SI Goa Super Kings. And I shall now request Pepsi's regional head Hemant Bhai Pandya and his team to join us for the toss. So requesting Hemant Bhai Pandya and entire Pepsi team to be with us for the toss ceremony.
So we are indeed privileged because the way this association has happened, I think it's a long association. Welcome, sir. It's indeed a privilege for us to host you today. Yes, Hemant Bhai, we welcome you and your team. I think Pepsi is doing a great job worldwide, quenching thirst of zillions of people. Aao Sahib, and you will be doing the toss. It's a silver coin where there is a Petroman embossed on it and 10PL embossed on it, and you will be flipping this on the mat. Welcome Naresh Asoldekar, who came all the way from Goa, and Petroserv International Ankur Singh. And we'll be doing the toss now. SI Goa Super Kings will call. Petroman is the call, and 10PL it is. So Ankur, congratulations for winning the toss, and what is the decision you have taken? Thank you so much. You can start your fielding preparations, and SI Goa Super Kings will bat. Thank you so much. Now, dear friends, we are going to felicitate Hemant Bhai Pandya and entire Pepsi team. Sir, it is indeed a very big privilege because a multinational brand like Pepsi getting associated with a tennis ball tournament in India for the very first time is a big honor for all of us. And I shall request now our league chairman Arif Khan Sahib to go ahead and felicitate you. So our league chairman Abdul Latif Khan Aka Arif Bhai is going to felicitate Hemant Bhai Pandya and the entire squad. So this is a small token of appreciation, love and affection, and may this association go for decades, and Pepsi and 10PL create a great camaraderie, not just in India but internationally. Thank you so much, Hemant Bhai. I know you are a busy person, but would definitely want to have word with you, sir. Hemant Bhai, of course, Pepsi, such a big brand, big name. And when you heard about 10PL and you got associated today, coming to the venue, it's watched about in more than 150 countries on YouTube, on OTT platforms. How are you feeling being here, sir? ऑल दी बेस्ट टू 10PL टीम सेम वो IPL टाइप पूरा मतलब ऑन गोइंग फॉरवर्ड ये प्लेटफॉर्म बने और जो उनका गली क्रिकेट से लेके ये जो मतलब लोगों के लिए जो है वो काफ़ी अच्छा है सो गुड अरेंजमेंट एंड विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर फ्यूचर सर पेप्सी ऑफ कोर्स खिलाड़ियों की प्यास बुझाती है थ्रू एक्वाफिना गैटोरेड एंड ऑफ कोर्स द ड्रिंक्स but tennis cricket sir jo players hai they definitely need a moral booster and Pepsi of course being the major player all over the world sir in coming years when this tournament happens internationally and in India we definitely look forward to your support and Hemant Bhai we would want your support there so that we can go ahead and create a big association sir have you ever played tennis cricket in your childhood days? Oh, you are still playing till date. That's great. And sir, Arif Bhai का जो vision है आपको कैसा लगा? Bringing stars from small, gullies to the stadium. We have got one star like this, Huzair Sheikh, just 17 years old. He was playing in the gully, and he is going to represent Petroserv International in the next match. He is going to play. So we have got two players like this: Satyam Chaudhary, who represented AB Azam Warriors from Madhya Pradesh, and Huzair Sheikh. How do you see this kind of encouragement happening for people who are playing in gully and straight away they are into the biggest platform of the world?
दिस इज़ गुड फॉर गली क्रिकेटर के लिए, बिकॉज ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ से वो मतलब एक स्टेप आगे जाए और इंटरनेशनली वो खेलें। जैसे इन्होंने बताया मुझे अब्दुल जी ने कि हम इसके थ्रू हम लोगों को इंटरनेशनली मतलब प्रमोट करने जा रहे हैं। सो इट इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट काइंड ऑफ प्लेयर्स। Thank you so much, sir, and we wish you good luck for the future endeavors. I would also request you, I know you are busy, but sir, if you have time tomorrow, please do, arrive and grace the occasion, sir. We'll come tomorrow. Definitely, we three guys will plan. Sure. Yeah. Thank you so much, sir, and have a great day ahead. Let's go to our combox now, where Abhishek Shanu is going to share the mic with Harish. SkyExchange.net presents 10PL Season 4 powered by Petroman। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस सुबह के साथ, चौथे दिन के सुबह के साथ। ये मुकाबला देख रहे हैं आप, दो टीमों के बीच ये मुकाबला है। एक तरफ इंटर ग्लोब मरीन है, दूसरी तरफ वलसाड स्ट्राइकर्स है। इंटर ग्लोब मरीन ने टॉस जीता और कहा मैं पहले बल्लेबाजी करूंगा। जवाब में कुल मिलाकर अगर हम टारगेट की बात करें तो 76 रन टोटल बनाई, 77 का लक्ष्य है। और ये देखिए पहले ओवर के क्रिकेट में अगर इस तरह के कैचेस आप देखेंगे, इस तरह के मोमेंट देखेंगे तो फिर खुशहाली खुशहाली हरीश सर। बहुत ही लाजवाब विकेट यहाँ पर प्रज्योत अम्बीरे ने हासिल किया। छोटे रन पर बॉलिंग कर रहे थे और बैटर को लालायित किया था बड़ा उम्दा शॉट खेलने के लिए। बॉल आसमान में जरूर रही लेकिन दूरी तय नहीं कर पाई और एक भव्य कैच का निर्माण वहां करते हुए इंटर ग्लोब मरीन। और यहाँ पर वलसाड स्ट्राइकर्स के ऊपर पहली सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए इंटर ग्लोब मरीन। और इस तरीके से जब विकेट से शुरुआत होती है, जब वो कॉलम फुलफिल होती है तो फिर चीज़ें किस तरह से बदलती है और किस तरह से खुशहाली आती है टीम के खेमे में, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो आप सबको विदित हो कि पिछले 3 दिनों तक इस आगाज को हमने देखा है, कल ये अपने अंजाम तक पहुंचेगी क्योंकि ये खूबसूरत सा शहर सूरत गवाही दे रहा है। इसके ये खूबसूरत से स्टेडियम लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम गवाही देता हुआ इस भव्य आयोजन का जो पहली बार हिंदुस्तान पहुंचा, वो भी सूरत के खूबसूरत से माहौल में बड़े बेहतरीन तरीके से लगातार स्ट्रोक परोस रहे हैं। तो अब यहां से एक विकेट गिरने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि अब दोनों बल्लेबाजों को थोड़ा सूझबूझ के साथ, स्टैंडर्ड बैटिंग के साथ स्मार्ट बैटिंग भी करनी बहुत जरूरी। यस, सबसे बड़ी बात है क्रिकेट में एक मुहावरा है, बोथ दी बैटर्स शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। दोनों एक दूसरे के मार्ग को प्रशस्त करते हुए चले। एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। इस तरह अगर कुछ 2 ओवर तक नॉट आउट रहते हैं, अगली 12 गेंदों में 15 से 20 रन बना लेते हैं तो मेरे ख्याल से एक बुनियाद खड़ी हो जाएगी। और अभिषेक इस बात को भूलना नहीं होगा कि विजयी लक्ष्य तय करने के लिए पावर प्ले के जो 2 ओवर हैं ये सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर है, इसमें किस तरह बल्लेबाजी होगी इसके ऊपर भी निगाहें रहेगी वलसाड वासियों की। देखिए पावर प्ले का ओवर एक तरह से मैटर ये भी करता है कि आप टेक्निकली कितने वेल हैं, क्योंकि वहां पे आपको फील्ड को खेलना होता है पावर प्ले के अंदर की अगर हम बात करें, क्योंकि इतने सारे फील्डर आपको सर्कल के अंदर नजर आते हैं तो आप उनके ऊपर से कैसे खेलते हैं और उस एरियाज में किस तरह से शॉट लगातार कन्वर्ट करते हैं, ये बहुत दिलचस्प रहता है और ये बड़ी बात रहती है एक बल्लेबाज के लिए। चुनौती तो बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है, 77 का टारगेट है और उसको कैसे आगे बढ़ाएगी ये बहुत दिलचस्प रहेगा। लेकिन इस बीच शॉट को मिडल ऑफ द बैट ले नहीं पाए, लेकिन एक मौका बन रहा था, वहां पे कैच छूटता हुआ निराश न हताश नजर आ रहे थे रक्षक और गेंदबाज उससे भी ज्यादा। एडी चोटी का जोर लगा दिया था वहां पर मंगेश वैती ने।
देखिए किस तरह से स्ट्रोक को खेला, ना ऊंचाई मिली ना अंतर तय कर पाए, लेकिन आसान नहीं होता। आपने देखिए आगे आकर दौड़ते हुए कैच लेना आसान है, दाएं बाएं पीछे जाते हुए मुश्किल होता है। मंगेश वैती ने बड़ी शिद्दत के साथ उस कैच को लेने का प्रयास किया, वो प्रयास अपने आप में सराहनीय है। ये अलग बात है कि कैच नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश जो है उसको सलाम है। दाद देनी होगी गेंदबाज की भी, जिस तरह से वो लगातार एफर्ट दिखा रहे हैं, काफी कमाल के टप्पे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए दाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार फिर से हवा में उछाल करके खेला फील्डर के ठीक बगल से गेंद निकलते हुए, जब तक डीप के दायरे में जाती वहां से फील्डर आते, आसानी से अवसर था छोर बदलने का। कवर स्वीपर कवर के एरिया से फील्डर जब तक आते, बहुत बढ़िया तरीके से मार्ग को प्रशस्त करने की कोशिश, और यहाँ पे उन चीजों में लगातार कामयाबी का जश्न मनाने के लिए ये आगे बढ़ निकले हैं। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसी के साथ ये बड़ी मछली फिर से जाल में फंसी है। दाद देनी होगी इस गेंदबाज के एफर्ट की भी। हर एक गेंद पर उन्होंने ऐसा बताया कि हमें विकेट मिल रही है, हम विकेट के लिए जा रहे हैं। हर गेंद इनकी विकेट टेकिंग बॉलिंग ऑप्शन के साथ कप्तान भी गए इनके ऊपर, जिस तरह से लगातार बिहेव दिखाया इनके ऊपर, जिस तरह से लगातार सारी चीजें इन्होंने की, तो ये गेंदबाज बड़े कमाल के अंदाज में आगे बढ़े हैं। गिरीश कोचरेकर की तारीफ करनी होगी, अपनी पहली गेंद को प्रभावशाली अंदाज में किया था। इस बार भी बैटर को ललचाया था, हुक करने का प्रयास, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा था, और ऐसे में योगेश अन्ना ने फाइन लेग पर एक दर्शनीय कैच को अंजाम दिया और गिरीश कोचरेकर ने यहां पर विकेट को गिरा दिया। तो अब दबाव में आते हुए वलसाड स्ट्राइकर्स, और गिरीश कोचरेकर की लाइन और लेंथ की अचूक गेंदबाजी यहां पर रंग लाती हुई और बड़ा झटका। और ये निश्चित तौर पे बहुत बड़े झटके के साथ साथ टीम में वो जो एक प्रेशर शिफ्ट होगा उसको अब कैसे झेल पाएंगे, उससे कैसे उबर पाएंगे बल्लेबाज, क्योंकि आसान नहीं रहता है एक बल्लेबाज के लिए ऐसे हालात से बाहर निकल पाना। लेकिन ऐसे हालात से टीम को जो बाहर निकाल कर ले जाता है वही असली नायक कहलाता है हरीश सेठ। और परिस्थितियों को बदलने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा, हमें खुद को अपनी परिस्थिति और मनस्थिति दोनों को बदलना होगा। इसी बीच शॉट को देखिए, किस तरह से खुद को पोजीशन किया, किस तरह से स्टांस चेंज किया, ग्रिप चेंज किया और खेल दिया बाउंड्री लाइन की तरफ, और इस तरीके से एक और चौका स्विच हिट के रूप में आता हुआ। एक चीज है, मयूर दरबार ने बॉल को जल्दी पढ़ लिया और पिक करते हुए स्विच हिट करते हुए उसे रिवर्स पुल कर दिया। दरबारों की शान ही न्यारी है, फिर वो जिमी दरबार हो या मयूर दरबार। ये चीज देखिए, ये शॉट बल्लेबाज के स्टैंडर्ड को बताता है। पहले चौका और अब सूझबूझ के साथ बढ़िया तालमेल के साथ रनिंग बिटवीन द विकेट, और इसी तरीके से तो इनिंग जनरेट होती है, आगे बढ़ती है। जी, हमेशा जब आप एक बड़ा शॉट खेलते हैं उसके बाद 1 रन लेकर आप स्ट्राइक को घुमाते हैं, स्कोरबोर्ड को गति में रखते हैं। अंडर बैटिंग ओवर बैटिंग ये दोनों एक रोग है, तो समान संधियां देते हुए अगर साथ में बल्लेबाजी करें तो ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर एक शॉट और देखा गया, लेकिन बहुत जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं। इस तरह के शॉट्स की जरूरत नहीं है। मिडिल ऑफ द बैट आई नहीं गेंद, और इस बीच फिर से एक और झटका लगता हुआ टीम को। ऑफ स्टंप के बाहर से उठाया था, और अनिकेत राउत जो टीम के कप्तान है स्वयं एक बहुत अच्छे लचीले शरीर के खिलाड़ी हैं। जैसे ही देखा कि बॉल उनकी दिशा में आ रही है, थोड़ा सा अपने आप को तैयार किया और दौड़ते दौड़ते उस कैच का अपने छाती के करीब उन्होंने स्वागत किया। बिल्कुल अपने छाती के करीब उस टेनिस बॉल को उन्होंने इस तरह पकड़ा जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी एक छोटे बच्चे को अपने गले लगाता है, और खुशी का इजहार किया। एक भव्य विकेट यहां पर हासिल करते हुए इंटरग्लोब मरीन।
और वो वक्त कितनी सुकून दे जाती है ना कि जब आप इस तरह से कैचेस लपकते हो। बिल्कुल सही बात आपने कही, जिस तरह से बड़े बुजुर्ग बच्चे को लगाते हैं, जितनी खुशी मिलती है उतनी सुकून मिलती है जब आपको विकेट रूपी गिफ्ट मिले। और उस गिफ्ट को कबूल कर रहे हैं लगातार इनके क्षेत्ररक्षक, स्वीकार कर रहे हैं इस चीज को। लेकिन बल्लेबाज को यहाँ से समझने की कोशिश, और कितनी बड़ी बात है पेप्सी जैसे ब्रांड ने यहाँ पे आके 10PL में प्लेयर्स को न सिर्फ स्पॉन्सर किया, सपोर्ट किया, इनको आगे बढ़ाने के लिए आगे आए। ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, काफी काबिले तारीफ चीज है ये। नए ओवर करेंगे मोहम्मद बशीर शरफुद्दीन जो केरला से आए हैं। सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट खेले पिछले साल नवंबर में, और एक ऐसा खिलाड़ी जो यहाँ पर मैच के परिणाम के ऊपर एक अमिट छाप छोड़ सकता है। और मयूर दरबार के साथ जुड़ते हुए हिमांशु पाटिल। अभी भी लक्ष्य बहुत बड़ा है, 66 रन चाहिए 36 गेंदों में, और फर्क सिर्फ 30 का है। 5 बड़े शॉट चाहिए मैच में वापस आने के लिए, और वापसी करनी होगी क्योंकि जो वापसी करेगा उसी को याद रखा जाएगा। शरणागति स्वीकार करने वाले को कोई याद नहीं रखता, लड़ाई लड़ने वाले योद्धा को जिंदगी भर याद रखा जाता है। देखिए हरी सर, मैंने एक दो चीज और नोटिस किया है। बल्लेबाज कभी कभी इतने ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि वो खराब गेंदों का भी सम्मान करने लग जाते हैं। कल के मैचेस में भी हमने एक आधी गेंदें ऐसे देखी थी जब 2-3 विकेट, तो यहाँ से आप अगर 3 विकेट अगर आपके गए हैं तो आप यहाँ से भी ऊपर उठ सकते हैं। बशर्ते आपको इंतजार करना होगा उन गेंदों का, क्योंकि आप देखेंगे कभी कभी यॉर्कर का प्रयास जो रहता है, वाइड यॉर्कर का जो प्रयास रहता है, वो फुल टॉस के रूप में तब्दील हो जाती है, और वहां पे उस मौके का लुत्फ नहीं उठा पाते बल्लेबाज। इनसे जरूर इस चीजों को ध्यान में भी रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे बल्लेबाज पहले ही माइंडसेट उनका हो जाता है कि इस गेंद पर इस तरह के शॉट्स खेलने हैं, तो उनसे थोड़ा बचना होगा। जब गेंद रिलीज होती है तो उस वक्त उस चीज को थोड़ा पढ़ना होगा बल्लेबाजों को भी। और यहां पर बल्लेबाज को फांस दिया। शरफुद्दीन की ऊपर उठती हुई गेंद को बिल्कुल पढ़ नहीं पाए हिमांशु। न पद चापल्य नजर आया, न वो पैनी नजर, और वो छेड़खानी करने के जुर्म में कसूरवार हुए, और विकेट कीपर करण मोरे ने उस कैच को लपक लिया। करण मोरे ने अभी तक कोई वैसी गलती की नहीं है अभी तक। जिस तरह से वो विकेट के पीछे लगातार चौकन्ने नजर आ रहे हैं, एक शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज के हैसियत से टीम में जगह बनाते हैं और बखूबी काम को अंजाम तक भी पहुंचाते हैं। ये कितनी बड़ी खास बात है। और अब एक नजर स्कोर कार्ड पर डाली जाए, सिर्फ और सिर्फ 12 रन के कुलयोग पर 4 विकेटें गंवा दी है, और ओवर नंबर ये 3rd ही अभी चल रहा है। एक बड़ा सा विशालकाय लक्ष्य को आप भेदने के लिए निकले हैं, तो कुछ ना कुछ वहां पे एक अलग माइंडसेट के साथ आना होगा। फर्क होता है ना, कितना फर्क होता है जब आप एक कम एज से ऊपर उठकर इतने बड़े लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हो, तो वहां पे फर्क सिर्फ और सिर्फ आपके माइंडसेट का होता है। उन चीजों से आपको आगे बढ़ना होगा, सीखना होगा और निकलना होगा उस लक्ष्य को भेदने के लिए। चलिए फिर से जड़ में डालने की कोशिश, और बल्लेबाज के द्वारा वहां से खोद करके निकालने की कोशिश, और कामयाब भी हुए। विकेट पर दौड़ भी लगाई, 2 रन भी प्राप्त किए, अर्जित किए। और अब यहाँ पे हर एक रन, चाहे सिंगल के रूप में आए, डबल के रूप में, चौके या छक्के के रूप में, वो टॉनिक की तरह काम करेगा, बूटी की तरह काम करेगा। जी हाँ, विटामिन आर की कमी इस वक्त है, उसको पूरा करना होगा, और उसकी आपूर्ति ये बल्लेबाजी कर सकते हैं। 14 पे 4। इस बार कनेक्शन कितना अच्छा है, गेंद कितनी दूर जाएगी। अरे वाह भाई वाह, कमाल किया इस फील्डर ने, जिस तरह से एफर्ट दिखाया है इस खिलाड़ी ने। वाकई में श्रेयस कदम के कदम ने बल्लेबाज के बढ़ते हुए कदम को रोका और एक 6 रन बचा लिए। पूरी टीम तालियों से अभिवादन करती हुई श्रेयस कदम का। आज उनका हेलीकॉप्टर शॉट और ये लगाई गई छलांग, कलाबाजी दिखाती हुई कि श्रेयस कदम, जिसमें है दम वो है कदम। वाकई इस खिलाड़ी में अद्भुत प्रतिभा है। जिस तरह से उन्होंने सेव किया 6 रन,
आमतौर पर कोई फील्डर इस जगह पे होता तो उनके लिए ये चीजें मुश्किल रहती, क्योंकि वो इस चीज से बाहर नहीं निकल पाता कि ये 6 के लिए जा रही है या फिर नहीं। तो इसलिए यहाँ पर दाद देनी होगी इनके इस एफर्ट की। फिलहाल स्कोर कार्ड पर एक नजर डालें इस मुकाबले के अंदर तो 15 रन स्कोर है अभी 4 विकेट के नुकसान पर। 16 अब 1 रन के साथ यहाँ पर स्कोर कार्ड पर बढ़ोतरी होगी और 4 विकेट के नुकसान पर बड़ा दिलचस्प सा ये मुकाबला चल रहा है। बहुत सही तरीके से दोनों ही टीमें आगे बढ़ने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन यहाँ पर लगातार इंटरग्लोब मरीन की तरफ से कितना एफर्ट और देखने को मिलेगा ये बहुत मैटर करेगा। फिलहाल एक बार और कवर के क्षेत्र में गई डीप में खिलाड़ी मौजूद थे, आसानी से वक्त था, अवसर था, मौका था, दस्तूर था छोर बदलने का और इसी के साथ ओवर को कंप्लीट करेंगे। 3 ओवर के बाद स्कोर 17, 4 विकेट के नुकसान पर। सत्रह बने 4 विकेट के नुकसान पर और अभी भी मैच जीतने के लिए 60 रनों की जरूरत है और ये 60 रन बनाने होंगे बचे हुए 5 ओवर्स में, यानी कि 30 गेंदों में 60 रन, रिक्वायर्ड रन रेट 12 का। और शरफुद्दीन ने 1 ओवर में 5 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। परिस्थितियां थोड़ी विपरीत है वलसाड स्ट्राइकर्स के लिए और वलसाड स्ट्राइकर्स को चाहिए कि अब धीरे धीरे अपने खेल में वो निखार लाए, कमजोर गेंदों को मैदान के बाहर भेजे। अब ये हमारे देखिए चारों दोस्त, चारों यार, और शराबी फिल्म का गाना याद आ गया, जहां 4 यार मिल जाए वहां क्रिकेट हो गुलजार। और ये चारों वहां पर मजा लेते हुए स्टैंड में शकीर अजमेर 4 पर खेल रहे मयूर दरबार, 6 पर मयूर दरबार। इनको जिमी दरबार की पारी के एक पन्ने को फाड़कर उन्हीं की तरह बल्लेबाजी करनी होगी, तो ये काम वलसाड स्ट्राइकर्स के लिए हो जाएगा। नाम भले वलसाड स्ट्राइकर्स है, लेकिन इस वक्त वलसाड पैसेंजर नहीं, राजधानी की स्पीड में दौड़ना होगा। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे लगातार गिरीश के द्वारा अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई अलग ही अंदाज में आगे बढ़ रहे, टीम को आगे ले जा रहे। पिछले मैच में हमने देखा था लगातार विकेट टेकिंग एफर्ट दिखाया था इन्होंने। अभिषेक, गली से स्टेडियम तक का सपना खिलाड़ियों का भी पूरा हो रहा है और प्रेक्षकों का भी तो हो रहा है। जो दर्शक गलियों में क्रिकेट खेल रहे थे, देख रहे थे, उन दर्शकों को अब स्टेडियम में भी तो देखने का मौका मिल रहा है। मेरे ख्याल से गली से स्टेडियम तक ये केवल खिलाड़ियों के लिए नहीं, दर्शकों के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। जी हाँ बिल्कुल। आमतौर पर आप देखते हैं कि बड़े बड़े इवेंट में उनको इंटर होने नहीं दिया जाता है बगैर टिकट्स के, और यहाँ पे पूरी तरह से टिकट फ्री ये इवेंट है 10PL। आप लोग आइए, मजा लीजिए इस पूरे इवेंट का। कल ग्रैंड फिनाले भी देखेंगे, कल आखिरी दिन होगा, तो आखिरी दिन तक में क्यों ना आकर यहाँ पे टीमों को भी सपोर्ट करें और मैच का भी लुत्फ उठाएं। आप लोग अगर घर से बैठे बैठे देख रहे हैं तो आइए ग्राउंड पर मजा लीजिए स्टैंड्स में बैठकर। इसी बीच यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी गिरीश से हो रही है 2 नंबर की जर्सी में। एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खींच करके मिड विकेट की दिशा में लपेटना चाह रहे थे, लेकिन कामयाब हुए नहीं और इसी के साथ फिर से फील्डर को पाया एक और विकेट आउट। ऑफ स्टंप के आधा मीटर बाहर से उसको हुक करने का प्रयास था। हर किसी के बस की बात नहीं होती। देखिए जिस तरह उन्होंने शॉट खेला, लपेटना चाहते थे, लपेट नहीं पाए, लेकिन क्षेत्र रक्षक के हाथ में लिपटती हुई गेंद, योगेश अन्ना का ये कैच और एक और विकेट धराशायी होता हुआ यहाँ पर वलसाड स्ट्राइकर्स का गिरीश कोचरेकर को मिलती हुई एक और कामयाबी। गिरीश तो आज जिस अंदाज में आ रहे हैं उसी अंदाज में छा भी रहे हैं। तो इस तरह से अगर इस मैदान पर आप ऐसे परफॉर्मेंस करें, इस तरह से गेंदबाजी करें, तो फिर चीजें बिल्कुल अलग हो जाती है। टीम को लगभग आधी टीम को इन्होंने वापस लौटा दिया है पवेलियन की तरफ और इनके गेंदबाजी का दम देखिए। दूसरे ओवर में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 9 गेंदें डाली है और 3 विकेट इन्होंने हासिल कर लिया है अभी तक। काफी कमाल की गेंदबाजी इनसे।
एक आधी विकेट और ऐड हो जाती है हरीश सर, अगर वो एक आधी कैच का जो एफर्ट वहां पे थोड़ा सा कम देखने को मिला। क्या ये विकेट का फीफर आज हासिल कर सकते थे? मौका भी था। अब लीजिए, आपने मांगा, उन्होंने दे दिया। विकेट की आपूर्ति, विकेट की मांग को पूरा करती हुई, और यहां पर याग्निक पटेल आउट। देखिए किस तरह ये कैच लिया गया, और कैच लेने वाले खिलाड़ी थे करण मोरे। करण ने विकेट कीपर के रूप में भी कैच लिया, फ्लाई स्लिप में भी कैच लिया, और अब हैट्रिक पर आ चुके हैं गिरीश कोचरेकर। 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर उन्होंने ब्रेस को पूरा किया है, और अब ब्रेस की पूर्ति के बाद क्या वो हैट्रिक को पूरा करेंगे इंटरग्लोब मरीन के लिए? वाकई में मतलब इंटरग्लोब मरीन इस हैट्रिक को पूरा करने में कामयाब होते हैं। गिरीश कोचरेकर पहले ऐसे खिलाड़ी बनेंगे इस साल, और हैट्रिक को बचाने के लिए अब मैदान में उतरेंगे नदीम। 18 पे 6, मेरे ख्याल से इस प्रतियोगिता का ये सबसे कम स्कोर भी कहा जाएगा। जापान में एक वृक्ष होते हैं जिसको बोनसाई कहा जाता है, बिल्कुल बोनसाई स्कोर है ये इस वक्त। और एक तरफ अगर हम देखें तो बहुत सशक्त पारी हमने देखी पहले इनिंग्स में, और भव्य स्कोर रहा 76 का 6 विकेटों के नुकसान पर। तो फर्क साफ नजर आ रहा है दोनों पारियों का। अब यहां से बाउंस बैक करना कितना आसान रहेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ, क्योंकि इतनी आसान रहेगी नहीं। अगर आपके टॉप ऑर्डर इस तरह से ध्वस्त हो जाए, पूरी तरीके से लड़खड़ा जाए इनकी गेंदबाजी के सामने। गिरीश ने 6 विकेटों में से 4 विकेट हासिल कर ली है, और क्या कमाल की गेंदबाजी की है। एक गेंद इनके पास है, मौका भी है, दस्तूर भी है विकेटों का फीफर पूरा करने का, क्योंकि अभी तक कोई गेंदबाज ऐसा नहीं आया है 10PL सीजन 4 के अंदर जिन्होंने फीफर हासिल किया हो। इस बार जी हां, आपने मांग की और पूरा कर दिया, और ये 5 विकेट एक पारी में पहली बार गिरीश कोचरेकर द्वारा लिए गए। पहला फाइफर, मेरे ख्याल से मैं 10PL कमेटी से दरख्वास्त करूंगा कि मैच खत्म होने के बाद ये जो बॉल है तोहफे में गिरीश को दी जाए, क्योंकि ऐसे बहुत कम बार ये सुवीनियर यहां से वो ले जाएंगे। मैच का परिणाम मुझे पता नहीं, लेकिन इस तरह के 5 विकेट 2 ओवर 12 गेंदों में 5 विकेट लेना, मतलब इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी किसी गेंदबाज के लिए? अभिषेक, देखिए शॉर्टर फॉर्मेट है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको मैक्सिमम 12 गेंदें डालने को मिलती है, और उसमें अगर आप विकेटों का पंजा पूरा करें तो क्या कमाल की गेंदबाजी, क्या दर्शनी, क्या आकर्षक गेंदबाजी, सबका इन्होंने दिल जीत लिया अपने गेंदबाजी के दम पर। देखिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगा गिरीश के लिए। मुंबई का वड़ा पाव और लोनावला की लोकप्रिय है चिकी। मुंबई का वड़ा पाव और लोनावला की लोकप्रिय है चिकी। गिरीश कोचरेकर की बल्लेबाजी गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी आज पड़ गई फीकी। 12 गेंदों में 5 विकेटें उन्होंने ली। पहला फाइफर 10PL का यादगार। कल हमने जिमी दरबार का हाफ सेंचुरी देखी, आज हमने फाइफर देखा, अब हैट्रिक बचा है। हो सकता है कल होते होते, लेकिन आज आप जो बोल रहे हो रहे, मैं तो चाहूंगा कि लॉटरी का टिकट अगर लेना है तो आज अभिषेक शानू को पूछकर लिया जाए ताकि लॉटरी लग जाए। और अब इसी के साथ 4 ओवर के कंप्लीट होने के बाद अब एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन करेंगे हमारे साथ 2 होनहार कमेंटेटर जो पूरे 10PL के अंदर धमाका मचा के रखा है। एक तरफ अजय गरत, दूसरी तरफ होंगे ऑसम।
धन्यवाद वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या, धन्यवाद अभिषेक शानू। एक बार फिर से सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, आप सभी का स्वागत है। SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10 प्रीमियर लीग सीजन 4 में, लेकिन ये 4 नहीं 6 की उड़ान है। जी हाँ, जाएगा 6 रन के लिए ये गेंद। बहुत ही अद्भुत शॉट, अविश्वसनीय शॉट। देखिए किस खूबसूरती के साथ शफल हुए, ऑफ स्टंप के बाहर गया और उस गेंद को खूबसूरती के साथ टाइम और मिडिल ऑफ द बैट के साथ 6 रन के लिए पहुंचाया मिड विकेट क्षेत्र पर। नदीम दीवाना बनाते हुए दर्शक को यहां पर इस खूबसूरत मैदान में लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत में, सूरत आपका स्वागत है। साथ ही साथ पूरे हिंदुस्तान का भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। 10 प्रीमियर लीग सीजन 4 के इस ऐतिहासिक मोड़ पर, जहां आप इस टूर्नामेंट का, इस प्रतियोगिता का चौथा दिन का आनंद लेते हुए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे साथी कमेंटेटर कॉम्बॉक्स में अजय गराथ। आपका स्वागत है अजय। धन्यवाद ओसामा। अर्थात औसम लक्ष्य बहुत दूर नजर आ रहा है इस समय वलसाड स्ट्राइकर्स के लिए। जो स्ट्राइक्स करने चाहिए थे बल्लेबाजों को पावर प्ले के दौरान, वो देखने को नहीं मिले और पहले 4 ओवर्स में पूरी तरह से गेंदबाज हावी रहे। खासतौर पर गिरीश कोसरेकर क्या कमाल के खिलाड़ी है। उन्होंने अपना पूरा अनुभव झोंका अपने टीम के हित में। 5 विकेट चटकाए। इस बार स्विच की कोशिश थी, गेंद उतनी सटीक गेंद तो नहीं थी जो कि डॉट बॉल होनी चाहिए थी, लेकिन डॉट बॉल हुई है। फुल टॉस थी लेकिन मिस कर बैठे। यहाँ इसका कारण है, ये मैं समझूंगा अजय, कि जब आप प्री माइंड सेट के साथ आप बल्लेबाजी करते हैं, आप सोच लेते हैं कि मैं ये गेंद को रिवर्स स्वीप लगाऊंगा, तब चाहे आप गेंद जैसी भी आपके पास आए, आप रिवर्स स्वीप का प्रयास करते हैं। ये ऑफ स्टंप के बाहर नीची रही, इसके चलते डॉट हुए। बल्लेबाज इस बार देखिए आगे फेंकी हुई गेंद हवाई यात्रा पर भेजना चाहते थे, लेकिन उतना बढ़िया संपर्क नहीं, इसके चलते केवल 1 ही रन मिलेगा नदीम दीवान को। इसी के चलते ओवर होता हुआ समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति पर 27 पर 7 वलसाड स्ट्राइकर्स। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10PL सीजन 4 में, पावर्ड बाय पेट्रोमैन। चौथे दिन का तीसरा मुकाबला जो कहीं ना कहीं एक तरफा हो रहा है। यहाँ से पलटवार करना बेहद मुश्किल नज़र आ रहा है वलसाड स्ट्राइकर्स के लिए, और इंटर ग्लोब मरीन ने अपना शिकंजा कस लिया है इस मुकाबले में। मात्र यहाँ से 3 ओवर्स का खेल बचा हुआ है। अभी भी 49 बल्कि 50 रनों की ज़रूरत है। 77 का टारगेट, 76 पर 6 इंटर ग्लोब मरीन का स्कोर। बहुत अच्छा टोटल बनाया गया और उसके बाद गेंदबाजी गिरीश कोसरेकर ने सुरंग सा लगा दिया विपक्षी टीम की बल्लेबाजी में। ओवर लेकर प्रजोत अंबीरे। ये 18 गेंदों में 50 इतना बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन ये स्ट्रोक बहुत ही बड़ा है। क्या कहने इस शॉट के, जैसे ही देख लिया था कि शॉट पिच डिलीवरी ऑन द राइज खेल जाओ से 6 रन के लिए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नदीम दीवान जो है वो उम्मीद की आखिरी किरण है इस समय मैदान में। शॉर्ट पिच गेंद थी, हल्का सा पॉज लिया उन्होंने बैकफुट पर जाकर, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को पुल किया। सही संपर्क था गेंद और बल्ले के बीच में। उनका ये दूसरा छक्का। 14 पर पहुंच चुके हैं 8 गेंदों का सामना करते हुए। अतीक सैयद नए बल्लेबाज है, अभी तक कोई गेंद उन्होंने नहीं खेली है और अतीक सैयद का रोल कहीं ना कहीं मुख्य गेंदबाज का रहा है। लेकिन यहाँ पर मैच यदि जीतना है तो उनको बल्ले से भी जौहर दिखाने पड़ेंगे। या बिल्कुल, दोनों छोर से जब रन आएंगे तो आपकी टीम के लिए आसान हो जाएगा कि आप अपनी टीम को वहां पर जीत के लिए ले जाएं। लेकिन बहुत ही बढ़िया प्रयास वहां पर शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र में 1 रन लेने में कामयाब
नदीम दीवान इसी के साथ आए हैं स्ट्राइक पर अतीक सैयद। देखिए यहाँ से 15.50 की औसत से रन बनाने की दरकार है वलसाड स्ट्राइकर्स को, और ये संभव भी है काफी हद तक अजय, यदि ये जोड़ी टिकी रहेगी क्रीज पर। आप देखेंगे तो 7 विकेटें अभी तक गंवा चुकी है वलसाड स्ट्राइकर्स, जिसके चलते 34 रन बनाए हैं। इस बार हवा से बातें करती हुई गेंद, फील्डर आएंगे उसके नीचे, एक आसान सा कैच जरूर था लेकिन उसे ड्रॉप किया वहां पर जीवन दान देते हुए शरफुद्दीन ने। क्या ही कहने इस बल्लेबाज के, अपनी किस्मत को लिखा कर आए हैं आज अतीक। पहली गेंद पर जीवन दान, बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं थे इस स्ट्रोक के, थोड़ी सी ऊपर उठती हुई गेंद थी। और यहाँ पर शरफुद्दीन कमाल के फील्डर है, पहले 2 मैचेस में हमने देखा है उन्होंने कमाल के कैचेस लिए हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है एक मैच में उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक ही हाथ से ऊपर उछलते हुए कैच लपका था, पिछले मैच में मिड ऑफ की दिशा में दर्शनीय कैच लपका था, लेकिन इस बार गलती हुई। इस बार बेहतर कंट्रोल के साथ शॉट खेला गया है, शॉट आमजाब, सीधे डीप मिड विकेट पर एक ही रन मिलेगा। हालांकि सिंगल डबल से बात तो बनने वाली नहीं है, 100 बातों की एक बात यह है कि अब ओस चाटने से प्यास बुझने वाली नहीं है वलसाड स्ट्राइकर्स की। या बिल्कुल, 100 सुनार की तो एक लोहार की, उस लोहार का काम करना होगा यहाँ पर वलसाड स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को। 1-2 रन से बिल्कुल भी बात नहीं बनने वाली, यहाँ पर चौके और छक्कों की बारिश होनी चाहिए। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ खेल दिया इसे, 1 बाउंस ओवर द रोप, अद्भुत अविश्वसनीय पारी यहाँ पर आती हुई। ज्यादातर शॉट ऑफ लेंथ गेंदबाजी की जा रही है प्रज्योत अम्बिरे द्वारा इस ओवर में। पहला ओवर गजब का रहा था उनका, 4 रन देकर 1 विकेट छटकाया था, लेकिन इस ओवर में खर्चीले साबित होते हुए बहुत बढ़िया पोजीशन में आकर पुल किया था। और देखिए कितना समय है नदीम दीवान के पास, इन फ्रंट ऑफ स्क्वेयर ये शॉट खेला गया था उनके द्वारा, बिल्कुल मिड विकेट और काउ कॉर्नर के दरमियान चौका जड़ा। नदीम दीवान, खतरे की घंटी नदीम दीवान, ये जब तक क्रीज पर डटे रहेंगे तब तक खतरे के बादल मंडराते रहेंगे इंटरग्लोब मरीन के सर पर, क्योंकि ये एक ऐसे खिलाड़ी है, एक ऐसा तूफान है जो कभी भी किसी भी समय इंटरग्लोब मरीन को लेकर उड़ सकता है। 13 गेंदों में 36 चाहिए, केवल 6 छक्कों की दरकार। फुल टॉस गेंद थी, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था, चूंकि वहां पर एक डिलीशियस जूसी फुल टॉस को वहां पर छोड़ा। ओवर होता हुआ समाप्त, 6ठे ओवर की समाप्ति पर 42 पर 7 वलसाड स्ट्राइकर्स। खर्चीला ओवर रहा प्रज्योत अम्बिरे का, और ज़्यादा वो महंगे साबित हो सकते थे। अंतिम गेंद भी कमज़ोर थी और उस फुल टॉस गेंद का हालांकि फ़ायदा नहीं उठा पाए। आकर्षक ये ट्रॉफी आप देख सकते हो, चमचमाती हुई ट्रॉफी skyexchange.net presents 10PL Season 4 की, powered by Petroman. Yes, exactly, Ajay. I would also take this opportunity to thank all the sponsors who have been a part of this skyexchange.net presents 10 Premier League Season 4. Starting with skyexchange.net, title sponsor, Akar Chain strategic timeout partner, DG Beats, Smart Chain, Sukos.io, and one of the legendary brands over here who have ruled the entire world with their beverages. Welcome beverage partner Pepsi, ye dil mange more for sure. Official kidding partner UYP, unleash your potential. Venue partner Lal Bhai Contractor Stadium Surat. Thank you so much for being a part of 10 Premier League Season 4 and making this even more beautiful, even more grand, successful one. With your presence, with your participation in this. ओवर की शुरुआत की है मुसद्दीक ने, पहली गेंद पर सिंगल आया है और अब स्ट्राइक एक बार फिर से सेट बैट्समैन नदीम दीवान के पास। 11 गेंदों में चाहिए 35 रन।
ओ ये नो बॉल है, ये नो बॉल है। दिशाहीन गेंद, क्रीज के भी बाहर गेंद पिच हुई है, जिसके चलते अंपायर ने नो बॉल घोषित किया है। अंपायर शशि साठम का अब फ्री हिट का भी इशारा आता हुआ। अच्छा मौका है, अगली गेंद फ्री हिट रहेगी और ये प्लस पॉइंट है कि सेट बैटर इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर है। यदि इस गेंद पर बड़ा शॉट आया, चौका या फिर छक्का, तो निश्चित रूप से दबाव जो है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है गेंदबाज पर। Exactly. Red alert coming in here at Lal Bhai Contractor Stadium, Surat. Have a look at the delegates who have been a part of this NPL Season 4. We welcome you all. Back to the business. Free hit coming in. Oh, that's a big miss from the batsman. This could have been a golden opportunity to go for some big hits. This could have been a chance to take the scoreboard moving. But the credit goes to the bowler. What an exceptional bowling from the Musaddiq Sheikh. He's been phenomenal in this over. Just 2 runs conceded, in fact, in spite of that no ball delivery, Ajay. जी हाँ, फ्री हिट पर खास तौर पर जिस तरह से उन्होंने गेंद की वो काबिल तारीफ। हवा में है गेंद, बढ़िया कोशिश थी ओमकार देसाई की फ्लाई स्लिप में, लेकिन कैच नहीं कर पाए। हालांकि गेंद को पीछे जाने से रोका है उन्होंने, और इस समय यदि आप बाउंड्रीज भी बचा लेते हो तो आप मैच जीत सकते हो। हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा था बल्ले का, मौका जरूर था लेकिन मुश्किल अवसर। If you look at the batting order of Valsad Strikers, they are having a depth in their batting order, but what they have done, what they have, lost their wickets in a very quick succession. Lost 7 wickets early, and this time struggling around to go for some big hits because they knew that they don't have enough batsmen to, take their team over the line. If they lose their wicket this time, again swung the bat really hard, a swing and a miss. Credit goes to the bowler again, Musaddiq Sheikh, doing a great job for his team. Have a look at here, Abhijit Pawar, the man, the talk behind the 10PL management, who has been a part of this journey, holding the beautiful trophy. यही वो चीज़ है जिसके लिए सारा खेल होता है मैदान में। शानदार ट्रॉफी 10PL सीजन 4। अब की बार रचनात्मक शॉट खेलने का प्रयास था। ओहो, नो बॉल का इशारा। बैट्समैन बीट तो हुए थे, लेकिन ये एक समस्या रही है इस ओवर में गेंदबाज मुसद्दीक के लिए। ये दूसरी नो बॉल की है उन्होंने, अब की बार ओवर स्टेपिंग हुआ है। Yes, again a no ball, second no ball in this over. What a turn around coming in. If the batsman could have gone for a boundary in the previous free hit, then this could have been an advantage for them to keep the scorecard high, to keep the scorecard moving. Have a look at the camera angle. You can see the side angle, which clearly says that it's a no ball. ये टेक्नोलॉजी जो है ये दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। बिल्कुल सही फैसला था अंपायर का। There's free hit coming in. Second free hit in a row. Down the leg stump. He wanted to go for a single. Umpire signals it as a wide. One more extra run. It's all happening here at Lal Bhai Contractor Stadium, Surat. What a change. What a 31 runs required. 31 runs required in 8 deliveries. It's not a really big task if you keep these extras coming in. जी हाँ, और फ्री हिट भी यहाँ पर जारी रहेगा। दोबारा मौका है बाहर के बैट्समैन आतिक सैयद के पास। उनको पता है कि बल्ला तो घुमाना है, और ये बचे भी 2 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ रन्स आए, एक बड़ा हिट भी आया तो आखिरी ओवर में रोमांच रहेगा। कपेज, लेकिन बढ़िया स्टॉप, बहुत ही अच्छा एफर्ट वहाँ पर प्रज्योत अंबीरे का। फ्री हिट का फिर से बल्लेबाज फायदा नहीं उठा पाए। पिछली फ्री हिट पर कोई रन नहीं बनाता, इस बार केवल 1 रन। Yes, exactly. I actually wonder, Ajay, how can you miss those free hits? You're having a license to go for any of the shots. You just keep your eyes on the ball and just swing the bat really hard so that you can make the contact. But this is some incredible stuff from the bowler himself. 2 free hits and 2 dot balls. What an amazing stuff that he is carrying in this tournament. ओवर की आखिरी गेंद लेकर मुसद्दिक शेख, और लंबा हिट लेने का प्रयास था, लेकिन हल्की सी मूवमेंट गेंद में और बीट हुए बैटर, और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 7 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर है 47 पर 7।
Have a look at the required run rate, 30 runs and over. 30 runs required in 6 balls, 5 sixes. Can take the team over the line. SkyExchange.net presents 10 Premier League Season 4 powered by Petroman. Yes, 10 Premier League Season 4 Indian edition. Have a look at your screen. Asif Sheikh, the devil himself, enjoying each and every bit of 10 Premier League Season 4. And he's the one who has worked really hard for this tournament behind the scenes. And yes, Ajay, the players who have been a part of 10 Premier League here in India, in the Indian edition, they'll be having a first priority when 10PL flies back to Sharjah, UAE. जी हाँ, एक बहुत बड़ा ये निर्णय लिया गया है पेट्रोमैन द्वारा। ट्रैकिंग ड्राइव ऑफ साइड में फील्डर से थोड़ा दूर खेला, यहाँ पर 2 रन जरूर मिलेंगे, लेकिन फील्डर्स को भी पता है, गेंदबाज को भी पता है कि इक्का दुक्का रनों से तो दाल गलने वाली नहीं है इस मैच में। अब यहाँ से वलसाड स्ट्राइकर्स की ज़रूरत केवल और केवल अब हवाई फायर्स की है, और वो भी सफलता के साथ करने होंगे। केवल हवा में खेलने से भी कुछ नहीं होगा, बाउंड्री को आपको पार करना होगा। Exactly, 28 required of 5. Is this the man who can take his team over the line? Atiq Sayyed swung the bat really hard again. Thick outside edge is safely landed into the hands of the wicketkeeper behind the stumps. 8th wicket down for Valsad Strikers. अक्षय पर कोई दबाव नहीं, और यहाँ पर तो केवल उनको मेला लूटना है, और पहली सफलता अपने खाते में उन्होंने डाली है। 7 रन बनाकर आतिक सैयद पेविलियन की राह पर 49 पर 8 इस समय पूरी तरह से पिछड़ी हुई है इस मैच में वलसाड स्ट्राइकर्स। अब केवल औपचारिकताएं शेष इस मुकाबले में, और जीत के दहलीज पर इंटरग्लोब मरीन। Yes, exactly. The last ray of hope, Atiq Sayyed, has been dismissed by this bowler, Akshay. And just 2 wickets away, 4 balls, required 28 runs. The curtains are slowly coming down for Valsad Strikers. And Interglobe Marine having a great upper hand in this game right now. देखिए, थोड़ी रिकवरी ज़रूर रही 19 पर 6 विकेट गिरने के बाद, लेकिन 19 पर यदि आपके 6 बल्लेबाज आउट हो जाते तो वहाँ पर ही आप आधे से ज़्यादा मुकाबला हार जाते हो। उसके बाद तो कहीं ना कहीं केवल फॉर्मेलिटी ही बची थी, लेकिन थोड़ा बहुत संघर्ष किया नदीम दीवान ने, जुझारूपन दिखाया। यहाँ पर मौका बना है, दोनों बल्लेबाज एक ही सिरे पर। नदीम दीवान चाहते थे कि स्ट्राइक उनको मिले, लेकिन उनके पार्टनर ने बिल्कुल भी वहाँ पर रिस्पांस दिया नहीं, और नदीम दीवान भी आखिरकार चलते बने हैं। 9वें विकेट का पतन। Yes, exactly. 9th wicket down, just 1 more wicket away. दिवेश तांडेल ने वहाँ पर कोई रुचि नहीं दिखाई दी रन के लिए, और वैसे भी रन वहाँ पर लेना मुश्किल था, लेकिन यदि स्ट्राइक पर लाना था नदीम दीवान को तो वहाँ पर विकेट सैक्रिफाइस करना पड़ सकता था तांडेल को, लेकिन उन्होंने वैसा कुछ किया नहीं, और यहाँ पर अपना विकेट फेंक कर पेविलियन में लौटते हुए नदीम दीवान। लेकिन तारीफ करनी होगी उनकी, विपरीत परिस्थितियों में अच्छा खेल पेश किया उन्होंने, 20 रनों का अच्छा योगदान दिया। Yes, I totally agree with you, Ajay, because if you are, 6 wickets down on the score of 19, and from there on he's carrying the burden on his shoulders and taking your team to somewhere around 50, then that is something he has done a great job for his team. And if you are having that potential in your batting lineup, if you are having that depth in your batting lineup, then you should have to be a bit of sensible. You should analyze whatever the scores are. You need to chase the target of 77 runs. You have to analyze the innings in the initial stage, and you have to hold on for a second, hold on for a couple of overs, and then go for some wickets so that
you can take over, team to the victory. आखिरी जोड़ी है, आखिरी जोड़ी क्रीज पर, यहाँ पर कोशिश लाजवाब, लेकिन क्या गेंद आगे गिरी, ये देखने वाली बात है। रिएक्शन जिस तरह से फील्डर का आपने देखा, निश्चित रूप से वो बता रहे हैं कि कैच तो नहीं लपका है उन्होंने। That was an outside hit. The fielder was just short of that one. Could have been the last wicket for Valsad strikers. Last ball indeed coming in. Akshay, the man charging towards the batsman again. Jeet Patel, the man on strike, the new man out in the middle. The last ray of hope. Even he can't do anything for their team right now. So there's just one delivery left. Swung the bat hard and no contact again. A dot ball to wind up the innings, to wrap up the innings, to wrap up this game. Many congratulations to the entire team of Interglobe Marine. Tough day at the office for the Valsad striker boys. And it's a clear win for Interglobe Marine. What an amazing victory they had this time. और बहुत ही रोचक बात है, पिछला मुकाबला भी जो हमने देखा वो भी 24 रनों से जीता गया था पेट्रो सर इंटरनेशनल की ओर से। इस बार भी 24 रनों से जीत दर्ज की है और ये जीत है इंटरग्लोब Have a मरीन look की। at the match summary. Omkar Desai 33 of 20, Shreyas Vidyadhar Kadam 23 of 12, Aniket Rao the captain himself 10 of 3. कुछ इस तरह से ये शुरुआत हुई थी इस रनचेज की। शुरुआत में ज़रूर एक बाउंड्री देखने को मिली, बल्कि ये ओमकार देसाई के शॉट्स दिखाए जा रहे हैं। मैच की शुरुआत इस तरह से हुई थी। ओमकार देसाई ने बहुत ही बढ़िया पारी खेली, आक्रामकता दिखने को मिली। जिस खेल के लिए जाने जाते हैं ओमकार देसाई, वो स्ट्रोक्स उन्होंने दिखाए। हेलीकॉप्टर भी उड़ाया था और निश्चित रूप से एक अच्छा टोटल खड़ा करने में कामयाब रही। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करते हुए इंटरग्लोब मरीन, ये कलात्मक शॉट था, केवल फ्लिक भर कर दिया था। जिस तरह से ये छक्का जड़ा गया था, दो फील्डर्स वहाँ पर ऐसे लगा उनको कि चांस बनेगा, लेकिन कोई चांस नहीं था। आक्रामक तेवर लगातार जारी रहे इंटरग्लोब मरीन के बल्लेबाजों के, लेकिन फिर भी स्कोर ऐसा था कि उसको चेस किया जा सकता था। शुरुआत अच्छी होनी चाहिए थी, वो अच्छी शुरुआत देखने को नहीं मिली और शुरुआत से ही पारी लड़खड़ा गई थी। गिरीश कोचरेकर आए गेंदबाजी के लिए, जिन्होंने पूरी तरह से कमर तोड़ दी वलसाड स्ट्राइकर्स की बल्लेबाजी की। हाइलाइट्स आप एंजॉय कीजिएगा। हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप कहीं भी मत जाइएगा, बने रहिएगा skyexchange.net प्रेजेंट्स 10PL सीजन 4 में। All right, let's move over to the presentation party where our co-commentator, the voice of India, will take you over to the presentation ceremony. Over to you, Harish Pandya. हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के लाल भाई कॉन्ट्रैक्ट स्टेडियम पर, जहां आज पिछले 3 दिन से आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा इनामी राशि वाला क्रिकेट टूर्नामेंट। Our title sponsor skyexchange.net, who have presented this 10PL powered by Petroman. Thanks to beverages partner Pepsi. We are thankful to our strategic timeout and official partner Akar Chain. Special thanks to our official partner Socos.io, Digibits, and also Smart Chain. Kitting partner UYP, venue partner SDCA, Lalbhai Contractor Stadium. आइए अब मैन ऑफ द मैच के लिए मैं बुलाना चाहूंगा गिरीश कोचरेकर। मैन ऑफ द मैच, 2 overs, 9 runs, 5 wickets. First fifer of the tournament. और ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे कोर कमेटी मेंबर आसिफ भाई। देखिए दोस्तों, आसिफ भाई ये टूर्नामेंट खेलने वाले थे, लेकिन आरिफ भाई ने उनके ऊपर ऐसी जिम्मेदारी डाल दी कि उन्होंने कहा कि मैं अब दुबई एडिशन ही खेलूंगा। लेकिन गुड जॉब। पूरा देखिए जो पेजिंग का मैसेज है, टॉस है, ये सब कुछ हमारे आसिफ भाई हैंडल करते हैं। आइए गिरीश, प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट ब्रदर। दो ओवर 9 रन 5 विकेट।
आपकी जानकारी के लिए इन्हें मुंबई का कॉइन बॉक्स गेंदबाज भी कहा जाता है। पिच के ऊपर अगर एक जगह सिक्का रख दो तो गिरीश उसके ऊपर 6 गेंदें कर लेगा, ऐसी उनकी अचूकता है। और आपने 5 विकेट लिए इसलिए आपको ये बॉल भी दिया जा रहा है। और वाकई में ये बॉल आपके जीवन में हमेशा यादगार रहेगा। यस, शो द बॉल। और skyexchange.net के द्वारा 5,000 रुपए आपको मैन ऑफ द मैच होने के लिए दिए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच गिरीश। मुंबई का वड़ा पाव और लोनावला की फेमस है चिक्की। गिरीश कोचरेकर की गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी पड़ गई फीकी। गिरीश, एक बात है, कल मैंने आपको 12th मैन देखा था, आज आप मैदान में गए और आपने 5 विकेट ले लिए। कितना इजी होता है एक प्लेयर के लिए जब वो 12th मैन बनाया जाता है और जब वो अच्छा खेल रहा हो। एक 12th मैन के रूप में आप क्या सोच रहे थे कल, और आज ये मैन ऑफ द मैच जब आपने जीता तब क्या सोच रहे हैं? जब भी 12th मैन रखा था तो भी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं बाहर हूँ करके, लेकिन मैं टीम के साथ ही था। और जो भी है, जब भी मैं चांस मिला, अगर एक मैच में नहीं मिला, सेकंड मैच में मिला, तो मैं कर पाऊंगा कुछ ना कुछ तो टीम के लिए, वो हिसाब से ही था। बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली, अगर आप कभी 12th मैन है तो ये ना समझे कि मैं टीम के बाहर हूं। उन्होंने कहा मैं टीम के साथ हूं।